السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں سلمان کیانی اور میں ہوں مناہل رفیق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں، بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ، پیسہ اور وسائل مہیا کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی خارجی عناصر ملوث ہیں۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ مزید جانتے ہیں جاوید نور کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے فتنے میں پاکستان کے مشرقی ہمسایہ ملک کا بھرپور ہاتھ ہے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آخری فسادی کے خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ وفاقی اور بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر متحد ہیں۔ پوری قوم مسلح بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جائے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم نے وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے درجات کی بلندی اور ان کے لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو سفارتکاری کا شہر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دے گی۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی۔ کروشیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گورڈن گرلج راڈمان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی، سیاحت، انفراسٹرکچر، لیبر، موبلٹی، ویزا سہولت، تعلیم، دفاع اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ Mutual interest including trade, investment, development, agriculture, labor mobility, visa facilitation, education, defense, climate change, tourism, infrastructure, IT, seaports collaboration, etc. مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کروشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل ہے۔ بھارت کو سن طاس معاہدے کی مکمل بحالی یقینی بنانا ہوگی۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ Reviewed the entire spectrum of Pakistan-Croatia relations and agreed to undertake steps to inject greater momentum to our political and economic relations as well as to enhance our cooperation. عالمی امن، استحکام اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر ہے۔ We particularly appreciate very much Pakistan's diplomatic efforts that resulted in the Islamabad Memorandum of Understanding to end the conflict between the United States and Iran. جبکہ اس دورے کو پاکستان اور کروشیا کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا گیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیوز اسلام آباد۔ امریکہ کی مسلسل دوسرے روز ایران پر فضائی بمباری، چابہار، بندر عباس، سرک اور دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 14 ایرانی شہید، درجنوں زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے فضائی دفاعی نظام میزائلز اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں دو امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ دوبارہ حملے کیے تو رد عمل خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک بھی پھیل جائے گا۔
ईरान ने टेलीफोन पर कहा है वो डील करना चाहता है। अमरीकी सदर का दावा, कहा मालूम नहीं ईरान के साथ मुआहिदा करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। अमरीकी फ़ौज के ताज़ा हमले ईरानी फ़ौज के आबने हुर्मज़ में हमलों के जवाब में किए गए थे। ईरान ने दोबारा ऐसा किया तो हमारा जवाब 20 गुना ज़्यादा शदीद होगा। मेरी जान को खतरा है, मैं ईरान की हिट लिस्ट के टॉप पर हूँ। ट्रंप ने ईरानी खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकी भी लगा दी। ईरान गालम गलोच की सियासत का जवाब उसी अंदाज में नहीं देगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त जबान पर रद्द-ए-अमल, कहा हम ऐसी सियासत उस शख्स से नहीं सीख सकते जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। ट्रंप अपनी बात तौहीन आमेज अल्फाज के बगैर नहीं कर सकते, ताहम ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और हुकूक का भरपूर दिफा करता रहेगा। उधर नेटो सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी को खत्म करार देते हुए ईरानी क़यादत को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया था। खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकी पर ईरान का अमरीकी सदर को सख्त जवाब। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई का कहना है, जजीरा खार्क पर कब्जे की ख्वाहिश है तो आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, अगर किसी भी गैर मुल्की फौज ने ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश की तो पूरे इलाके को हमलावरों के लिए जहन्नुम बना दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, याद रखो हर लम्हे का जवाब दिया जाएगा। आबना हुर्मज़ अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत खोली जाएगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, हम बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं, अमली इक़दाम से देते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी अवाम से मुतालिक इंतहाई घटिया और गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके अहल खाना की मैयतें लेकर तैयारा नजफ से मशहद पहुंच गया, जहां उन्हें आज रोज़ाए इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जसद खाकी की यह मुंतकिली ईरान और इराक में 6 रोज़ तक जारी रहने वाले जुलूस जनाजा के इख्तितामी मरहले का हिस्सा है। आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के सरबराह के मुताबिक शहीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें मशहद में रोज़ाए इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के करीब दफन किया जाए। इससे कबल आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को करबला में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ों पर ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। एक और अहम मामले की बात करें। पंजाब में मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हिफाजती इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मौसमियाती तब्दीली अब एक हकीकत बन चुकी है, जिसके बायस हर साल गैर मामूली मौसमी हालात का सामना करना पड़ रहा है। मानसून सीजन के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने मुमकिन शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग, सैलाबी सूरत हाल और शदीद गर्मी से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत मानसून तैयारियों से मुतालिक आला सतह का इजलास। महकमा मौसमियात, PGMA, रेस्क्यू 1122, ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तमाम इदारों को हिदायत की कि वो मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कंटिंजेंसी प्लान्स हमारे पूरे इन प्लेस हैं। मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं, रेडीनेस एक्सरसाइजेज जो हैं वो मई 25 से शुरू हो चुकी हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी मॉक एक्सरसाइजेज को कंटिन्यूड रखें। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स भी अपनी मॉक एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराएं। मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता सैलाब के दौरान रेस्क्यू 1122 के मौसर ऑपरेशन को काबिल तारीफ करार दिया। कहा, इस बार भी तमाम इमदादी इदारे अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करें। रेस्क्यू 1122 जो है वो अपनी जो मॉक एक्सरसाइजेज है उसको कंटिन्यूसली करे। वो अर्बन पॉन्डिंग के लिए भी, अर्बन फ्लडिंग के लिए भी, हीट वेव के लिए भी। इस मौका पर वज़ीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत नई हाउसिंग स्कीम का भी ऐलान किया। कहा, इस स्कीम के तहत मुस्तहिक शहरियों को घर की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा, जिसकी माहाना किस्त सिर्फ चंद हजार रुपए होगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी मुलाकात की, जिसमें सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान 2026 पर ब्रीफिंग दी, जिसमें सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस प्लान 2026 पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक किया गया। किसी भी शदीद मौसमी सूरत हाल से कम 6 घंटे पहले बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची के इलाके ली मार्केट में 6 साल अब्दुल वली के अगवा के बाद कत्ल के लर्ज़ाखेज वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस ने मकतूल के पड़ोसी हमजा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इब्तदाई नताइज और मुलजिम के मुबैना एतराफ़ी बयान ने केस में कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। मरकजी मुलजिम हमजा ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वह बच्चे को बहाने से अपने फ्लैट में ले गया और ज्यादती के बाद शनाख्त जाहिर होने के खदशे के बायस उसने बच्चे को कत्ल किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल की लाश पुरानी और गल सड़ चुकी थी। इब्तदाई मुआयने में सर पर फ्रैक्चर और गर्दन पर निशानात पाए गए। उधर कराची की मकामी अदालत ने एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी। अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए गए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला 7 साल बाद सुनाया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत। मुज़ाकरात 2 रोज जारी रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जीशान सैयद से। जी जीशान सैयद, इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई अहम बाहमी तिजारती मुआहिदे मुज़ाकरात जो है वो वाशिंगटन में शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानी वफद की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद है, जबकि उसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर इंदिराबी भी पाकिस्तानी वफद में शामिल है। सेक्रेटरी OPHDR नदीम चौधरी भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है और ज्वाइंट सेक्रेटरी DC अशफाक खान भी पाकिस्तानी वफद का हिस्सा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात जो है वो जारी। मुज़ाकरात वाशिंगटन में आज भी जारी रहेंगे और कल भी जारी रहेंगे और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तिजारत और ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। भारत और बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में भारत में कम से कम 12 अफराद जबकि बांग्लादेश में 8 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुतादिद अफराद लापता और जख्मी भी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शदीद बारिशों से मुतासर हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजिर कैंप में लैंडस्लाइडिंग से एक स्कूल मलबे तले आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।